Hello everyone, and today we're going to start with the biology practical. And so let's get started with this. The first experiment is pollen germination by preparing temporary mounds. So the material and apparatus required could be fresh mature flower like transcendentia, jasmine, lily, vinca, china rose, petunia. And then you can need glass light, glass rod, sucrose, potassium nitrate, boric acid, compound microscope, cover slip, beaker, and distilled water. This is what you basically know about, like when you perform an experiment, then you know these things. Yeah, we are taking the glass slide, we are putting it over this, and we cover slip and all that stuff. So these are the basic requirements of the practicals, even in biology. So like the principal thing is, pollen grains are there. So the pollen grains represent the male gametophytes. For example, if the open anther of any flower is seen, yellowish powdery pollen are found. So the pollen are yellowish powder, and so we can say that they are generally spherical in shape and about 25 to 30 25 to 50 micrometers in diameter. It has a prominent two-layered wall. The hard outer layer called the exine is made up of sporopollen. The exine has prominent apertures called germ pores. The inner wall of pollen grain is called the intine. It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. Grain germination in nature, pollen grains germinate on the compatible stigmas of carpels. This process is called pollen pistil interaction, and they can also introduce to germinate a synthetic medium. And using chemical which favor pollen germination, such as 10% sucrose solutions. So during germination, a dine of pollen grain emerges after its pollen tube and through one of the germ pores in the exine. ऑब्जर्वेशन इनिशियली ओरिजिनली ऐसा बनाया जाता है एग्जाम को जब ना फाड़ के निकलेगा एग्जाम तो बहुत ज्यादा हार्ड होती है उसी के अंदर ऐसे बनाया जाता है कि अगर आप कोई हार्ड चीज से कवर कर रहे हो ऐसा हो सकता है ना कि आपको हार्ड चीज शेप में लो कि वो एक पर्टिकुलर पोर रह जाए तो वो पर्टिकुलर पोर रह जाता है जर्म पोर नाम का और वो जो जर्म पोर होता है उसी के थ्रू से वो निकल के चला जाता है और वो माइक्रोपाइलर वो सब पोलन पोलन ट्यूब से निकल के 10% सुक्रोज सोल्यूशन होता है ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन इसकी यही रहती है कि इनिशियली pollen grains are observed as uninucleated, which at the time of preparation becomes two-celled. The pollen grains take up medium and short, basically वो जर्मिनेटिंग से शुरू कर देते हैं एट फर्स्ट स्टेज द ट्यूब जो भी ट्यूब होता है उसके सेल enlarges and they emerges out of the germ pores of a pollen grain to form a pollen tube. The pollen tube further grows in the same manner as it grows to the style, right, to the ovary of the flower. The nucleus of the tube cells and germinate all four passes um, germinative cell passes through into it and descent towards the tip of the pollen grains. So there is this diagram, this very beautiful diagram, which we can see in this activity file, the project file. We also it's made by hands. So ऐसा लगता नहीं बट ये है अगर आप पेन से बनाते हो तो ये डायग्राम थोड़ा बट ये पेन से नहीं बना देता है ये लाइक ऐसे प्रैक्टिकल फाइल्स में हमेशा पेन पेंसिल को यूज कर रहे होते हैं तो इस वाले पेज में हमेशा पेंसिल यूज होता है कोई पेन का यूज इस्तेमाल नहीं हो सकता चाहे कोई सा भी पेन हो चाहे ब्लैक हो चाहे ब्लू सो अपन के पास अगर एक्साइन है उसके अंदर इंटाइन है मतलब एक्साइन है इंटाइन अंदर है उसके साइटोप्लाज्म में उसके अंदर न्यूक्लियस है उसके अंदर यहाँ पे अपने पास एक्साइन के अंदर एक जर्म पोर था अपने पास बाकी जो ट्यूब या वेजिटेटिव सेल होते हैं वो छोटे छोटे से सेल्स अपन सराउंडिंग में दिखा सकते हैं और ये तो अपन को इसका न्यूक्लियस तो दिख ही रहा है ये सराउंडिंग में क्या कहते हैं जनरेटिव सेल ये अपने इसमें वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करता हुआ अपन बना ही देंगे ट्यूब और वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस बन जाएगा कैलोस वॉल कैलोस वॉल होती है जनरेटिव सेल की है ना और जनरेटिव सेल से अपन का बेसिक जो यहाँ पे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन है वो होना है और वैक्यूल है अपने पास जनरेटिव सेल है अपने पास जनरेटिव सेल जो होता है वो क्या करता है जनरेटिव सेल अपने ये रिप्रोडक्शन में अपने मतलब प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है राइट मेल गैमेट्स अपने मतलब प्लांट्स के लिए ऑफ कोर्स नॉट प्लांट्स हाँ मेरी भावना लाइक ये जो हिंदी लैंग्वेज इसका ट्रांसलेशन अपने आप देख लेना जैसा भी रहेगा ठीक है मेल गैमेट्स ट्यूब न्यूक्लियस है इसके अंदर ट्यूब ग्रो करके एट द एंड ये जो एंड वाला डायग्राम है इसमें अपन ने दिखा रखी है ट्यूब ग्रो करके राइट And so, very soon, generative cells divide into two male gametes. Each male gametes are formed dendricular to spherical in shape. Result pollen germination was observed on the slide. And precautions: freshly plucked flower should be used. Procedure should be performed at room temperature. तो precautions क्या है? ऐसा होता है ना अपने पास अपन को like ऐसे होता है कि अपने पास एक क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन एम मटेरियल apparatus required material required एम अपन को बहुत अच्छे से पता रहता है प्रिंसिपल इसका यही रहता है कि अपन के पास pollen grains है 25 to 50 micrometers in diameter हो गया इसमें शेप में और उसमें prominent two layered wall हो गई hard outer layer exine
इनर लेयर एंटाइन होती है, जर्म पोर्स होती है, उससे इनर में पोलन ट्यूब इमर्ज होती है, पोलन ग्रेन से जर्मिनेशन होता है, फिर फाइनली पोलन बेसल इंटरैक्शन होता है जिसको अपन पॉलिनेशन कहते हैं। 10% सुक्रोज सॉल्यूशन के अंदर भी ये सेम चीजें करवाई जा सकती है ताकि पोलन ट्यूब ग्रो कर जाए, राइट? ठीक है, उसके जर्मिनेशन के टाइम पे एंटाइन ऑफ पोलन ट्यूब ग्रेन जो होती है वो इमर्ज करती है एज अ पोलन ट्यूब थ्रू द जर्म पोर्स, राइट? ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी? पोलन ग्रेन्स ऑब्जर्व्ड इज यूनिन्यूक्लिएटेड एट द टाइम ऑफ लिबरेशन बिकम टू सेल हो जाते हैं, बट ठीक है, फर्स्ट स्टेज में ट्यूब सेल होती है, वो एनलार्ज होती है, मर्ज होती है, जंप पोल ऑफ द पोलन ग्रेन टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब। तो जब पोलन ट्यूब बन जाती है और फर्दर क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ द पोलन जर्मिनेट एंड जर्मिनेटिव सेल जर्मिनेटिव सेल पासेस इनटू इट डिसेंट टुवर्ड्स द डिसेंट, मतलब उसके आगे वो चली जाती है टुवर्ड्स द टिप ऑफ द पोलन ग्रेन्स, टिप ऑफ द पोलन ग्रेन्स पे चली जाती है। तो यहाँ पे तीनों का तीनों अपन का अपने डायग्राम दिखाया ना, उसके अंदर अपन ने दिखाया कि तीनों के तीनों एंड में पहुंच गए, तो वही सेम चीज है यहाँ पे, राइट? उसके अंदर रिजल्ट अपन लिख सकते हैं कि पोलन जर्मिनेशन ऑब्जर्व हो गया। प्रिकॉशंस अपन लिख सकते हैं कि फ्रेशली प्लग्ड फ्लावर शुड बी यूज्ड, फ्रेशली प्लग्ड फ्लावर शुड बी यूज्ड, क्योंकि अपन को लाइव फ्लावर चाहिए जो जिंदा हो, जिसको अपन सोल्यूशन में रख के उसको जिंदा रख रहे हैं और थोड़ी देर के लिए। ऑफ कोर्स वो जिंदा थोड़ी देर के लिए रहेगा क्योंकि उसके पास न्यूट्रिएंट्स में सब कुछ अवेलेबल है एज इट इज जो उसको चाहिए था, ठीक है। और प्रिकॉशन इसके फ्रेशली प्लग फ्लावर्स, और दूसरा चीज क्या है, प्रोसीजर बिफोर परफॉर्म द रूम टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे करोगे फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ पाएंगी जिससे अपन को चाहिए होती है। एक्सपेरिमेंट 2 की बात करते हैं तो फ्लावर्स अडॉप्टेड टू पॉलिनेशन फॉर डिफरेंट एजेंसीज लाइक बाय डिफरेंट एजेंसीज, विंड, इंसेक्ट्स, बर्ड्स होते हैं। ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड फ्रेश फ्लावर्स, मैग्नीफाइंग ग्लास लाइट है, तो अपन को फ्रेश फ्लावर्स चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, ग्लास लाइट चाहिए। थ्योरी क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू सिग्मा ऑफ either of the same flower or the other flower of the same species is called pollination. So pollination is of two types: cross pollination and self pollination, right? So we are talking about pollen grains are immobile, hence require external agencies to move. So pollen grains जैसे होते मेल के बट ये immobile रहते हैं. So the external agencies involved in pollination may be abiotic, wind and water, and biotic insects, birds and snails. Maize flower Haemophilus होता है या फिर wind pollinated हो तो maize flower जो होता है वो of course हल्का होगा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक अपन को पता चल जाती है क्योंकि adaptation क्योंकि होती maize plant is monoecious and bears unisexual flowers, and the male flowers are born in terminal inflorescence while the female flowers are born in एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस। तो जो मेल फ्लावर्स है वो टर्मिनल है, मेल फ्लावर्स सबसे उस पे है और बाकी फीमेल फ्लावर्स ऐसे ऐसे है, ठीक है। एक ही मेल होगा क्या इनका? एनिमोफिली इन मेल, एनिमोफिली मतलब जो एनिमल्स नहीं, एनिमोफिली जनरली लगता है एनिमल्स है बट ये एनिमल्स का नहीं है, एयर का है। और अपने पास ये मेल फ्लावर हो गए, मेल फ्लावर्स टर्मिनल पे लग गए और पोलन ग्रेन्स बस से बाहर शेड होते जा रहे हैं और वो बाहर शेड होके सीधा सीधा फीमेल फ्लावर्स के अंदर गिर रहे हैं। तो दिस इज, वो ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट भी, बाकी ऐसे एयर के थ्रू ट्रांसफर हो ही जाते हैं। बाकी ऐसे छोटी छोटी इसकी पत्तियां बना दी। तो वेल लेवल डायग्राम ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये डायग्राम ऐसे बनते हैं, ठीक है। ये मेरी प्रैक्टिकल फाइल है और बहुत सीधा सीधा डायग्राम है, आप देख ही सकते हैं, राइट? सो फ्लैशिंग माय डायग्राम एनीवेज। सो इलोंगेटेड स्टाइल है अपने इसके अंदर, इसके अंदर, और एक कॉब है। इस डायग्राम के अंदर इलोंगेटेड स्टाइल लिखा रखा है। अब ना जब भी मैं बोलूंगी इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में बोलूंगी कि ये डायग्राम से मेरी प्रैक्टिकल फाइल में बना हुआ है उसमें किस टाइप का है, ठीक है। और अपने पास सिग्मा है, अपन के पास फॉर्मूला फ्रॉम अदर प्लांट है जो आया होगा, अदर प्लांट से आ रहा है जनरली यहाँ पे क्योंकि अपन ऐसा करवा रहे हैं, ज्यादा कुछ ऐसे अपन खास अपने खुद के प्लांट से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। वर्सटाइल एंथर हो गया, एक का किसका हो गया, ये है अपन के पास वर्सटाइल ग्रास का वर्सटाइल एंथर है, इस टाइप की शेप ले रहा है वो, ठीक है। तो ग्रास का जो है वो इस टाइप का है, बाकी मेज का सबसे पहले वाला याद रखना वो इस टाइप का होता है, ठीक है। खड़ा खड़ा सा एकदम, प्लांट भी एकदम खड़ा खड़ा सा है, राइट, ठीक है। उसके बाद feathery stigmas and versatile anthers in the flower of grass, right? मेरी आवाज रिकॉर्ड हो भी भाई इतनी देर से? Like I was speaking and I saw the mute button, so probably I just am checking this now.